The leader of opposition in the Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi, who has reached Hathras to meet the families affected by the stampede, a stampede that took place on Tuesday in Uttar Pradesh's Hathras, that has now finally there is a response as far as the Congress party, the leader of the opposition, is concerned. Rahul Gandhi has reached there. A stampede that caused the death of 123 people. It's taken 3 days since the stampede for the police in Uttar Pradesh to make arrests. Finally, 6 organizers of the satsang have been taken into custody. But the self-styled godman, who is at the center of this tragedy, for whom the prayer meeting was organized, has not even been questioned. Well, the big question is, where exactly is Bhole Baba? The stampede at the satsang, the police say, broke out when the self-styled godman was leaving and his followers rushed to collect dust stirred up by his car. The godman's guards pushed some of the followers, triggering the stampede. Now, the FIR that's been registered does not include the name of the Baba. And do remember, it was Uttar Pradesh's Chief Minister who has ordered a judicial probe into the matter. A 3-member judicial inquiry commission has been formed, and they have a deadline of 2 months to submit a report as to what really happened at that satsang which took place on Tuesday. So Rahul Gandhi there now. I'll visuals on your screen of Rahul Gandhi meeting the families of those affected by that stampede. He has gone to meet the families who've lost their loved ones in that tragedy that took place in Uttar Pradesh's Hathras. So, do remember Rahul Gandhi there, expressing his condolences, lending his support to the families during a very tragic time. 123 people, including children, mostly women, who were attending that satsang in Hathras in the afternoon when that stampede that took place. We have my colleague Tanushka joining us. Tanushka, where is Bhole Baba? Why is he missing in action? And how is it that the police in Uttar Pradesh have not been able to find out his whereabouts yet? And how come he hasn't been questioned, let alone be included in the FIR? So right now, Rahul Gandhi, leader of opposition, has just left the house of this deceased, victim's family here, who lost their mother. This is in Pilkhana village in Aligarh, and I'm present inside the house of the victim's family. I'm joined the victim. आप हमें अपना नाम बताइए और अपनी माँ का भी नाम बताएं। मेरा नाम विजेंद्र है और मेरी माँ का नाम प्रेमवती था। प्रेमवती जी सत्संग में जब गई थी, उसके बाद आपको कब खबर मिली इस भगदड़ की? वो मेरे भाई को मिली थी। अच्छा। ये बैठे हैं मेरे भाई। तो आपको? हाँ। मैं काम पर आया था 2 बजे करीब, तो जब ही फोन आया कि वहाँ हादसा हो गया है, तो पहले एक बच्चे की खबर आई थी जो उधर मंजू नाम था, कि वहाँ से फ़ोन आया था कि उनका लड़का ख़त्म हो गया। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद एक्सीडेंट में या गर्मी से ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद फिर खबर और आई कि उनकी माँ भी ख़त्म हो गई है। और फिर मतलब खबर आती रही फ़ोन पे फ़ोन के, मतलब वहाँ भगदड़ हो गई है, बहुत लोग ख़त्म हो गए। तो आपको आपकी माँ की खबर कहाँ से मिली? हमारी माँ की खबर, हम यहाँ से गए थे 3 बजे, यहाँ से हम चले गए थे सिकंदराव जिला हाथरस। तो वहाँ हमने देखा अपनी माँ को, पहले वहाँ गए थे, यहाँ सत्संग हो रहा था, वहाँ पर देखा फील्ड में करीब 19-20 बीघा की ज़मीन थी, तो वहाँ चप्पल पड़ी थी, किसी के रुमाल, कपड़े, बैग वगैरह पड़े थे, तो वहाँ हमारी माँ नहीं नज़र आई। फिर हमने हॉस्पिटल में देखा तो हॉस्पिटल में बहुत सी लाश पड़ी थी, और जो उनमें सांस चल रही थी वो भर्ती थे, वो उनमें भी देखा, लेकिन हमारी माँ नज़र आई। हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक देखते रहे, लेकिन हमको माँ नहीं मिली। हम रोते रहे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम सोच रहे मैंने कि हमारी माँ को मतलब ख़त्म नहीं हुई हैं, वो कहीं बेहोश हो गई हैं, किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इसी वजह से हम वहाँ रुके रहे। तो हमें करीब 11:30 बजे फ़ोन आया एटा से, हमारे मामा के लड़के का। ये रात के 11:30 बजे? रात के 11:30 बजे फ़ोन आया कि वो बुआ जी मिल गई हैं और वो हाथरस में, हाथरस के सरकारी अस्पताल में हैं। तो वहाँ जाके देखो, उनको आगरा ले जा रहे थे उनकी डेड बॉडी को। तो अब वो मैंने रुकवा दिया है, क्योंकि हमारे मामा के लड़के ने बताया कि वो मेरे चाचा हैं, पुलिस वाले हैं, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी है।
और आप जल्दी चले जाओ। आप जब अस्पताल गए तो आपने क्या देखा वहाँ पर, और अपनी माँ को आपने, आपकी पहचान उसका आप हमें? माँ ये देखा कि मेरी माँ अगर बर्फ़ पे पड़ी थी और 10-12 औरत और थी वहाँ पर। मैं देखकर मतलब मेरा कलेजा बिल्कुल टूट गया। जाकर मैंने अपनी माँ की जेल भरी, गोद से लगाया, मैंने बहुत चिल्लाई माँ अपनी गोद में भर के। मैंने हाथ फेरा अपनी माँ के चेहरे पे, मैंने कहा माँ मुझसे कुछ तो बात कर। मेरी माँ बिल्कुल नहीं बोली, मुंह से खून निकल रहा था, गर्दन ये बिछी हुई थी, यहाँ सूजन थी उनके कान पे, गर्दन पे, लेकिन जवाब नहीं दिया मेरी माँ ने बिल्कुल। अस्पताल में आपको कोई तरीके की मदद मिली किसी से भी अब तक? मेरी माँ में सांस चल रही थी, यहाँ से जैसे लेके गए, जब गिरी हैं उनके ऊपर से खून ली है, वो दवाई है, आदमी निकले उनके ऊपर होके, तो उनमें बताया वहाँ, और मेरी एक भाभी लगती हैं वो भी बता रही थी कि उनमें सांस थी और वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन भाभी भी हमारी परेशान थी, उनके भी चोट आई है, उधर घर है। तो वो मतलब पकड़ के 2-4 आदमी ने, पुलिस वाले थे और सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने वो जो और लाशें थी उन्हीं के ऊपर माँ को मेरी को फेंक दिया। उनकी बात नहीं सुनी, न ट्रीटमेंट को भेजा। यहाँ पर ये हॉस्पिटल था सिकंदरे में, तो यहाँ एक डॉक्टर थे और कोई नहीं था, और न कोई भी सुविधा थी यहाँ, न तो बोतल, न ऑक्सीजन। तो आप अभी अपनी माँ की मृत्यु पर किसे दोषी ठहराते हैं, सरकार या ये जो बाबा है जिनके सत्संग में ये सब हुआ? हम सरकार को नहीं ठहराते, हम मतलब इनको ठहरा रहे हैं जो मतलब बाबा हैं और कमेटी वाले हैं जिन्होंने सत्संग कराया था, उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं कि जब 80,000 की वहाँ पे वो थी मांग, और वहाँ पे 3.5 लाख आदमी आया है, तो उसी व्यवस्था करनी थी कि जब 30-35 आदमी थे वहाँ पर कम से कम 200-250 वो करने थे पुलिस वाले या सिक्योरिटी गार्ड, तो वहाँ पर कंट्रोल हो जाती। और एक ही दरवाज़ा था। हम सत्संगी उन कमेटी वालों की गलती मानते हैं कि और भी दरवाजे खुले होते तो एक ही आने जाने का जगह एक ही थी, इसी वजह से ज़्यादा पब्लिक ख़त्म हुई है। मेरी माँ भी ख़त्म हुई है, अगर और जगह खुली होती तो और वहाँ से निकल जाते, लेकिन मेन एक ही रास्ता था, इस वजह से वहाँ से भगदड़ में ख़त्म हो गई मेरी माँ। आप अभी जो कांग्रेस के लीडर आए थे, मंत्री आए थे, राहुल गांधी जी, उन्होंने आपसे मिलके क्या बातें की आपसे? उन्होंने बोला है कि आपकी बात को लेके हम पार्लियामेंट जाएंगे, वहाँ उठाएंगे इस आवाज़ को, और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी, उनको सज़ा हम दिलवाएंगे। आपको कैसा लगा कि आपसे ऐसे मिलने आए हैं, घर तक आए हैं? हमें बहुत अच्छा लगा, वो आए हैं इस गरीब के घर में, हमें बहुत अच्छा लगा। पर आपकी मांग क्या है अब? मांग हमारी ये है कि दोषियों को सज़ा दी जाए बस, और हमारी माँ को इंसाफ मिले, और जो भी सुविधा है वो सुविधा मिले हमें। हम मजदूर आदमी हैं, इस मकान में हम 4 भाई रहते हैं, 4 बहू हैं, चारों की शादी हो गई है, और करीब हमारे 8-10 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। एक विकलांग लड़की है, वो सामने बैठी है, 13 साल की मेरी लड़की है, वो विकलांग है, वो न चल पाती है न खाना खा पाती है, उसको भी खाना अपने हाथ से खिलाती है हमारी घरवाली। लेटरिन, पेशाब, बाथरूम इस पे जीने पे चढ़ा के ले जाती है सीढ़ियों पे, जब उसको लेटरिन पेशाब कराती है। विकलांग लड़की है मेरी, 14 साल की। आप महीने का कितना, आपकी आमदनी कितनी हो जाती होगी? महीने में वही 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये। इसके ऊपर से अभी मतलब ये सब जो हुआ है आपके साथ, मतलब वही बात है कि सरकार ने, योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने आपको कुछ भी मुआवजे की बात हुई है आपसे? हाँ हुई है, हमने मतलब अभी दिया नहीं है कुछ भी, लेकिन सुना है कि 2 लाख रुपए की मृत्यु वालों को, जो इनकी मृत्यु हो गई है, उनको 2 लाख रुपए राशि देने का वादा किया है। So this was the son of a
the mother who has passed away in this Hathras stampede incident. A very vivid and moving, description of how his mother passed away and how everything unraveled, how he went to the hospital from pillar to post looking for his mother, and he described exactly how he found his mother lying on a slab of ice in a pile of other dead human beings.